Hello everyone, today we are going to discuss about the set math. So in this video, as in the last video, we have completed key fact number A7. So today we are going with key fact number we can say key fact number A8, okay? I am going to share okay. Key fact number A8 basically it represent the sum of any number and its opposite. किसी भी number का अगर आप sum कर रहे हो, the sum of any number and its opposite a plus minus a will always be equal to 0. ठीक है, क्या बोल रहा है? Going to do here method. अगर आप एक इंटीजर ले रहे हो, उसका सम कर रहे हो किसी भी नेगेटिव इंटीजर के साथ, उसका अपोजिट के साथ, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। इनके ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे. पॉजिटिव नेगेटिव विल बी कटेड. ओके. आफ्टर दैट दे हैव बीन आस्क्ड कि many properties arithmetic depend on relationship between subtraction and addition, between the division and multiplication. Sorry, subtraction number in the same way. ठीक है. a minus b is equal to a plus minus b. A plus b is equal to a reciprocal. So these both are same. Okay. Now moving towards key fact number A9. To subtract signed number, change the problem to an addition problem by changing sign of what has been subtract. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अगर किसी साइंड नंबर को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्रॉब्लम पूरी चेंज कर दो किसके अंदर? एडिशन प्रॉब्लम के अंदर, और चेंज कर दो साइन जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कोई एक वैल्यू दी गई है. यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमें वैल्यू दी गई है विच इज 2 minus 6 is equal to 2 plus minus 6 is equal to -4. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक साइंड नंबर है, उसको क्या करना है? माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको पूरी प्रॉब्लम को क्या कर दो? एडिशन की फॉर्म में चेंज कर दो. तो मैं इस पूरी प्रॉब्लम को क्या कर दिया? एडिशन की फॉर्म में चेंज कर दिया. और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो इंटीजर यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी साइन चेंज कर दो नेगेटिव के अंदर. तो बन के हमारे पास ये पूरी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरी मेथड ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम क्या ले लेते हैं? दूसरी मेथड 2 minus 6 is equal to 2 plus 6 is equal to 8. ठीक है, क्या होगा? ये जो साइन है पॉजिटिव वाली, इसको कंट्रोल नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव में. ठीक है, और जो ये नेगेटिव वाली साइन है, इसको कर दो पॉजिटिव के अंदर. ठीक है, तो दिस कैन बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंटीजर्स. Now we are going with the integers. So basically the integers are which can start like integers are all negative, positive, zero. Those are integers like -4, -3, -2, -1, 2, 3. These all are what? These all are integers. Now if I do talk about the positive integers, so those must be 1, 2, 3, 4. Positive integers are the integers which are on the right hand side of 0. In the bar table on the right hand side of the 0, those all are the positive integers. After that, if I do talk about negative integers, so those are all the negative integers like -1, -2, which are on the negative side, left side of the 0. Okay. So here, what are positive numbers? Which are 1, 2, 3, 4, and further on, which are on the right hand side, right hand of 0. ठीक है, 0 के जो राइट हैंड पर हैं. और नेगेटिव नंबर are -1, -2, -3, फर्दर ऑन, जो कि क्या है हमारे पास? जो कि है लेफ्ट साइड पर है, किसके? हैंड ऑफ 0. ठीक है, I hope this first one is clear to you guys. Now moving towards second one. Now here we are going with another page in which we have another integer. Those are consecutive integers are two or more integers, दो या दो से ज्यादा integers within sequence, each of which is one more than preceding integer. ऐसे integers जो कि sequence के अंदर, जैसे 22 और 23, ये क्या है? दो या दो से ज्यादा इंटीजर जो कि सीक्वेंस में जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स. लाइक 6, 7, 8, 9, ये क्या है? कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. एंड लाइक -2, -1, 0, 1, ये क्या है? कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं लाइक दिस. Okay, now here moving towards example number 7. So in the example number 7, it been asked if the sum of three consecutive integers is less than 75, what is the greatest possible value of the smallest of these three integers? अगर हम सम करें तीन इंटीजर्स का, consecutive integers का, तो हमें पास क्या? less than 75. So they have been asked कि हमारे पास what is the greatest possible value of the smallest of three integers. So here we are going to solve this.
Yes. If we have what, अगर we are going to put the formula n plus 1 plus n plus 2, ठीक है, so this will be 3n plus 2 plus 3 3, which is less than 75, ठीक है, less than क्या है 75, so 3n less than 75 minus 3, here it is minus 3n less than 72 and n is equal less than 24. So 24 एक ऐसा इंटीजर है जो कि क्या है, अभी ये क्या है 23 है, 24 है एंड 25 है। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, थ्री इंटीजर्स एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं 23, 24, 25 जो कि क्या है लेस देन है 75 से। तो अगर हम कर लेते हैं 23 प्लस 23 प्लस 1 प्लस 23 प्लस 2, 23 प्लस 2, तो 23 प्लस 24 प्लस 25, ठीक है, so 5 9 11 12 2 1 3 4 5 6 7 72, so you can see this is less than 72. So I hope this problem is clear to you guys. Okay, so now moving towards example number 8, in which they have been said if 2 is less than x less than 4 and 3 is less than y less than 7, what is the greatest integer value of x plus y? Now we have to find out the greatest integer value of x and y. Fine. So this problem I'm going to solve here. Okay, so this is basically, yes, going to solve here. So this is basically 2 is less than x less than 4 and 3 is less than y less than 7. So we have to find out the greatest possible value of x plus y. First of all, we're gonna add greatest possible value from x integer is, इनमें से greatest possible value कौन सी है? So that will be 6, ठीक है? Sorry, इनमें से greatest possible value 3. Okay, so here you can see 2 और 4 के बीच में कौन सा आता है 3, प्लस और 3 और 7 के बीच में कौन सा आता है जो कि ग्रेटेस्ट हो और 7 से छोटा हो, so that will be 6, so that is equal to 9. तो हमारे पास क्या है x प्लस वाई एक ऐसा इंटीजर है जो कि क्या है, जो कि 9 हमारे पास x है 9 y है, लेकिन वो क्या है 3.8 भी हो सकता है वो, क्योंकि ये क्या है छोटा है, या वो 6.2 हो सकता है, ये भी छोटा है, तो हम एक अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये 10 है, ठीक है, वो या तो 3.8 हो सकता है 3.6 हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. Now here we have example number 9. In this they are saying if A is the remainder when 999 is divided by 7. A एक रिमाइंडर है, ये I'm going to solve, ठीक है, ए एक रिमाइंडर है जब क्या है 999 को डिवाइड करते हैं 7 से, ए क्या है रिमाइंडर है, आंसर है, और बी क्या है रिमाइंडर है जब हम 7 को डिवाइड करवा रहे हैं 9 से, तो what is the remainder when a is divided by b? अब रिमाइंडर क्या है जब हम a को डिवाइड करते हैं b से, so we have to find out that. So for that we gonna add this, पहले हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो 9997a जो a है जब 9997 को डिवाइड कराएंगे तो you will get that is 142.714, ठीक है। सो दिस मीन्स नाउ अब हमें क्या करना है, 7 को हम ऐसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 142.714 को, सो दैट विल बी 994, तो टोटल क्या था हमारे पास 999 को जब माइनस करेंगे 994 से, सो द आंसर बी 5, तो मतलब 5 ऐसा रिमाइंडर है। सेम विद द बी, हम सेम बी के साथ करेंगे, बी क्या है हमारे पास 777 डिवाइड बाय क्या करेंगे 9 से, तो वी आर गेटिंग दैट इज 86.33,
और जब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 से, सो यू विल गेट व्हाट, we get 774. So 777 minus 774 you will get 5. तो क्या है remind, oh sorry 3, you will get 3. ओके सो अभी हमें क्या मिला, हमें क्या कर रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि b और a का रिमाइंडर बताओ. सो b और डिवाइड बाय a 5 और 3. तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा 1, रिमाइंडर क्या बनेगा 2. 2 क्या हो गया रिमाइंडर जो बच रहा है, और क्वेश्चन क्या है 1. Okay, I hope this is clear to you guys. Now moving towards another page. Now we are moving with page number 3. Okay, sorry, page number 3. So here we have example number 10. It's been asked that how many positive integers less than 100 have the remainder 3 when they are divided by 7. कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जब हम उसको 100 से डिवाइड करवाएं, लेस देन 100 हो, जब हम उसे रिमाइंडर क्या हो 3 हो और डिवाइड करवाएं 7 से. कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 100 से छोटे हैं जब हम 3 को डिवाइड करवाएं 7 से. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, अगर हम 0 को करवाते हैं, डू इट देयर. ठीक है, जब हम 0 को करवाते हैं 7 से, प्लस 3 कर देते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास 3. ये 7 0 7 0 प्लस 3. और फिर जब 1 को करवाते हैं प्लस 3, सो दैट विल बी 7 7 प्लस 3 10. 2 को करवाते हैं इंटू 7, 3 इज इक्वल टू 14 15 17. ठीक है, लाइक वाइज हाउ ऐसे ही करवाते जाए. लास्ट है हमारे पास 13. 13 को जो आप 7 से करवाओगे और प्लस करोगे 3 रिमाइंडर को, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 94. अब आप देख सकते हो ये एक ऐसा लास्ट नंबर है 13 जो कि क्या है हमारे पास 94 है और लेस देन है किससे 100 से. अगर हम यहाँ पे 14 की बात करें, 14 इंटू 7 प्लस 3, तो वो होगा हमारे पास क्या, 14 इंटू 3 विल बी 98. 98 प्लस 3 विल बी 101. तो आप देख सकते हो कि 101 तो 100 से क्या है ग्रेटर है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट लेस देन 100. तो 13 ऐसे पॉजिटिव, सॉरी 13 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि क्या हैं लेस देन है किससे 100 से. सो आंसर विल बी 13. Fine, now moving towards another question. If a and b are integers, the following expressions are synonyms. अगर a और b क्या integers हैं तो following ये क्या है कुछ synonyms हैं. a is divisor of b. हमें पता है कि a क्या है divisor है, जो b को क्या करता है divide करता है. और b is divisible by है. हम ये भी कह सकते हैं b क्या है डिवाइडेबल है a से, मतलब b डिवाइड हो रहा है a से. तो इसके दो फैक्टर हम कह सकते हैं. a इज डिवाइजर ऑफ b, के a डिवाइड कर रहा है b को, और हम ये भी कहते हैं b डिवाइजेबल है a से, b खुद अपने आप को डिवाइड करवा रहा है a से. ऐसे ही हम कह सकते हैं कि a क्या है फैक्टर है b का, और हम कह सकते हैं b इज मल्टीपल ऑफ a, b क्या है मल्टीपल है a का. Likewise this, okay. After that here we have key fact number 10. In this they are saying every integer is a finite set of factors. हर एक integers के पास क्या होता है finite set होते हैं factors के और divisor के, and an infinite set of multiples. कोई भी integer है उसके बाद क्या होते हैं finite set होते हैं factors के, और क्या होते हैं infinite set होते हैं multiples के. For example अगर मैं factor लेती हूँ 12 का, मैं वहाँ पे लिख लेती हूँ right there. For example if I'm going to take the factor of 12, ठीक है, तो फैक्टर है 12 का, तो भी फैक्टर क्या होगा वो फाइनाइट ही होगा, कुछ ही होंगे, लेकिन उसके मल्टीवर्स क्या होंगे चलते रहेंगे. अभी फैक्टर 12 के कितने हो सकते हैं, -12 हो सकता है, -6, -4, -3, -2 हो सकता है, -1, देन 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हैं कुछ फैक्टर्स 12 के। इससे ज्यादा 12 के फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो मीन्स हमारे पास फैक्टर क्या है, फाइनाइट है, काउंटेबल है। हम इतने फैक्टर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इसके मल्टीपल्स की बात करें तो वो क्या है, इनफाइनाइट है। मल्टीपल्स की बात की जाए तो वो क्या हो सकते हैं, -48 हो सकता है, -36, -24, -12, 0, 12, 24, 36, 48 और सो ऑन। तो मतलब क्या है, 12 के फैक्टर्स क्या है, फाइनाइट है, लेकिन उसके मल्टीपल क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है। I hope this concept is clear to you guys. अभी what are prime numbers? Prime numbers क्या होते हैं? The prime numbers are the numbers which are divisible by its own table and from 1. ऐसे नंबर जो कि क्या होते हैं, अपने टेबल से डिवाइड होते हैं और क्या होते हैं, 1 के डिवाइड होते हैं। इसके 2 हमारे पास क्या एक प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये किससे होता है, डिवाइड होता है अपने टेबल से, और एक 1 से। जैसे कि हमारे पास 3 एक अपने टेबल से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। सो दीज आर सम प्राइम फैक्टर्स। Now moving towards key fact number 11, in which they have been asked to find the prime factorization of any integer. Find two factors. If they both are prime, you can done. If not, factor them. अभी हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपको बतानी हो किसी भी इंटीजर की, तो पहले तो उसके दो फैक्टर्स लो। अगर वो दोनों फैक्टर्स क्या है, प्राइम हो रहे, तो मतलब आपका आंसर आ गया। और अगर वो प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो आप उसको करते ही जाओ, ठीक है, अंटिल वो फैक्टर्स प्राइम नहीं हो जाते। So let's do one factorization. Prime factorization. Fine. For example हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है हमारे पास 108 और दूसरी है हमारे पास 240। अभी इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या निकलेंगे, इसका होगा 2 और 54। इसकी होंगे हमारे 24 और 10। अभी देखो ये अभी भी प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये अभी भी किसी और से हो सकते हैं। तो 2 तो हमारे पास एक आ गया प्राइम फैक्टर। अभी 24 का देखते हैं, तो हो गया 6 और हो गया 9, तो ये भी फर्दर 9, तो फिर 6 होता है हमारे पास 2 × 2 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा अपने पास 3 × 3। अब ये आ गया हमारे पास कुछ प्राइम फैक्टर्स इसके। 10 की अगर 24 की बात की जाए तो ये होता है 4, और 6 के अंदर इसके 2 इसके 2 एंड 3, और 10 की बात की जाए 2 और 5 हो जाते हैं। तो दीज आर सम फैक्टर्स, ठीक है, ये क्या है, कुछ फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपका रुक जाता है, कुछ प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। So I hope this key fact number 11 is also clear to you. Moving towards another page. Okay. So here it being told कि ये देखो 108 और 240 के हमने फैक्टर्स निकाले, तो ये आगे प्राइम फैक्टर्स, ये इसके प्राइम फैक्टर्स। तो जब तक ये पूरी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स पे नहीं रुकती, अगर रुक जाती है तो इट मीन्स ये प्राइम फैक्टर्स आपके निकल गए, और नहीं रुकती तो आपको फर्दर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। Here example number 11 is given. Have a look. For any positive integer a, let a denoted the smallest prime factor of a. Which of the following is equal to 35? अब कितना होगा ये 35 के इक्वल होगा। Now we have to find out the factors. अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। So as you can see के पहला है हमारे पास क्या है, 10 है, दूसरा 15, तीसरा 45, चौथा 55। अभी हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब अगर आप 10 ले लेते हो तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। और अगर आप क्या लेते हो, 15 लेते हो, तो उसके क्या आएंगे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, एक होगा 3 आएगा, एक होगा 5 आएगा। तीसरी है हमारे पास 45, इसके अगर आप प्राइम फैक्टर्स ले रहे हो तो क्या आएंगे हमारे पास, एक 3 आएगा और हमारे पास क्या आएगा
एक मेरे पास आएगा 5 और 9 आएंगे, 5 और 9, ठीक है, 5 और 9, और लास्ट में बस है 55, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे अपने पास? इट विल बी 5 एंड 10। अब देखो, इसमें से ऐसा है कि वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो वो है 55, क्योंकि इसके अंदर 10 आ रहा है और 10 फर्दर होगा, तो दिस मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज 10, डी, 55. ओके, now here we have what the least common factors and greatest common factors. least common मतलब क्या है? LCM, और greatest common मतलब GCF. ओके, अभी की फैक्ट नंबर 8 की बात कर लेते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ GCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अगर हम GCF का और LCM के दो नंबर्स का क्या लें, इक्वल करें दोनों को, उनके प्रोडक्ट लें, तो वो दोनों नंबर इक्वल होंगे. और की फैक्ट नंबर 13 बोलते हैं हमारे पास, टू फाइंड द GCF और LCM ऑफ टू और मोर इंटीजर्स. अगर आपको GCF और LCM फाइंड करना है दो या दो से ज़्यादा नंबर का, फर्स्ट गेट देयर प्राइम फैक्टराइजेशन. पहले इसकी क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, then you will get this. Okay, I hope till that these all are clear to you guys. Bye bye.